questions free to ask. Any aspect which I missed, which you would like to? Interview experience. Okay. Interview experience of mine or how to prepare for interview? Okay. See, fortunately, the rank which I have got is due to my interview only. My main score was not very good as I was working the whole time. I did not get the, as I wrote कि मैंने 25 दिन पहले जो एग्जाम लिखा था उसमें मेरी क्या कंडीशन थी, तो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू. So that is what has propelled my rank to top 100. My interviews rate, generally I've been fortunate enough in interviews. In RBI also I had a very good score in interview. In army also I had a very good score in interview. So almost wherever I have got selected, it is courtesy to some extent, very good scores in interview. I think what has helped me in interview is, first of all, it is honesty. I have been very transparent and very honest. I do not pretend to say or anything about me which I have not done, or I am very transparent, candid. And if I don't do anything, the best response is don't know. Don't try to mislead the interviewing panel because they are very experienced people. They get to know whether you know it or you are faking it. Then I think the DAF is there, the detailed application form, where you get to fill in your hobbies, where your background is there. So prepare it very thoroughly. See, I might ask something about anything कि ये क्या हो रहा है, and you, if you say कि नहीं आता, it is okay, क्योंकि anybody is not expected to know everything going on in the world. But if you say कि your interest is foreign affairs, and then I ask you something about Iran, about the last 60 years of Iran, and then you are not able to answer it very confidently or in a non-convincing way, then I will say कि यार आपकी interest है ना. If you are not even sure about your interest, then how do I trust you? So basically be very thorough with your DAF. जो भी आपने भरा है उसके एटलीस्ट बैक इट अप. उसके लिए जैसे मैंने क्या किया था, अगेन मेरे पास समय कम था तो मैंने अपने डैफ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. मैंने फॉरेन पॉलिसी, IR, गार्डनिंग अपनी हॉबी थी मेरी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और RBI बैंकिंग, तो ये 3-4-5 टॉपिक्स आई आइडेंटिफाइड और उस पर मैंने बहुत थरली पढ़ लिया था. पढ़ा कहाँ से था? न्यूज़पेपर के सोर्सेज. न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स एंड मेंस, बट दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू के समय आप 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ लें तो बेटर रहेगा. उसके बाद आई मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ChatGPT. मैं इंटरव्यू के समय क्या करता था, बस क्वेश्चन सोचता था कि RBI को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, RBI क्या बेटर कर सकता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या अचीवमेंट रहा है पिछले 10 साल में, हाउ इज़ द फॉरेन पॉलिसी चेंज ओवर द लास्ट डिकेड. आई जस्ट चलते फिरते मैं क्वेश्चन सोचता रहता था, एंड आई यूज़ टू जॉट डाउन क्वेश्चन. घर पहुँच के ChatGPT वो सारे क्वेश्चन ऑफलोड कर देता था और उसके फिर वो आंसर दे देता था, और वो ChatGPT के सारे आंसर्स के कंपाइलेशन में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करता रहता था. एंड दैट इज़ हाउ द मेजॉरिटी ऑफ माई इंटरव्यू प्रिपरेशन वॉज. एक्सेप्ट, और क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज था, तो उस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर और फॉरेन अफेयर्स वाली जो मैगजीन्स होती हैं उस पर हर थिएटर का, कि मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया US हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, हर थिएटर का आई रेड अराउंड 10 to 15 articles on each and every IR theater. So that is it about interview. So being thorough with DAF, being thorough with current affairs, newspapers, everything going around in the world, you should have a, unlike mains where you need not have a very individual stand about everything. आप थोड़ा बुकिश आंसर लिख सकते हो. इंटरव्यू में ऐसा नहीं है, आपका थोड़ा पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, जो कि यू शुड हैव कन्विक्शन इन योर ओन ओपिनियन. आप मेंस का जनरल आंसर नहीं लिख सकते कि ऐसा कर लेना चाहिए और सबको खुश कर देना चाहिए. नहीं, यू शुड हैव अ योर ओन स्टैंड. तो वो स्टैंड होना चाहिए. इट शुड बी अ रीजनेबल स्टैंड. यू शुड बी फर्म इन योर स्टैंड. तो यस, दैट इज़ इट अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन. आई थिंक न्यूज़पेपर्स, DAF एनालिसिस, एंड वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज़, यू शुड बी थरो विद इट. उसके बाद क्या है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ा एंडलेस प्रिपरेशन वाली हो जाती है. इफ़ योर इंटरव्यू इज़ लिटिल लेट तो आपको लगेगा हर चीज़ पढ़ लो. उसके बाद द मोर द बेटर, बट आई थिंक इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स, दीज रिसोर्सेज विल सफाइस एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न. CSAT, okay. CSAT, I did not stress upon CSAT because I have an engineering background, तो मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा. पर आई रिकग्नाइज कि इट इज़ बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग दीज डेज. 2023 का भी पेपर was quite, I did not give that paper, but that paper was quite tough.
So yes, CSAT is tough. So and it is becoming tougher in matlab from the last 3 to 4 years. So we should understand its importance and recognize the pattern कि UPSC उसको टफ कर रहा है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें उस पर ड्यू अटेंशन और ड्यू रिस्पेक्ट उस पेपर को देनी है, जो कि नॉर्मली हम लोग देना भूल जाते हैं. ऐसा लगता है कि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, हो ही जाएगा. और पर उसमें बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मेरे इंजीनियरिंग पीयर्स हैं जो कि CSAT फ्लंक कर रहे हैं. मतलब मेंस में बहुत GS में 110 के ऊपर नंबर हैं, पर CSAT इज़ नॉट एबल टू क्लियर CSAT. सो CSAT का बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड बहुत डेडिकेटेड फोकस से CSAT का भी तो बहुत सही स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊंगा शायद. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन CSAT इज ना, लाइक देर आर अराउंड 80 क्वेश्चन, जिसमें 25 इंग्लिश के रहते हैं, 25 से 30, बाकी 50 मैथ्स रीजनिंग और ये सब रहता है. मैथ्स और रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है उसमें से हर साल अगेन कुछ 15-20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी होते हैं, जो कि छुपे होता है. उस पर लिखा तो है नहीं कि ये ईजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. दैट इज वेयर योर प्रैक्टिस कम्स इन टू प्ले. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज ईजी 15-20 क्वेश्चन. दे आर वेरी ईजी, ट्रस्ट मी. they every year those 15-20 questions will be there, so that you can just identify and solve them. Forget about 30 question. You do matlab I would suggest कि one should not even try attempting the difficult questions because they are time wasters. You get trapped in them, you won't get the right answer also, but you would have ended up wasting up your 5 or 6 minutes and trying to solve that question and trying to understand that question. जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ के लग रहा है ना कि ये मैंने नहीं किया है, एक क्वेश्चन है पढ़ के फील हो जाता है कि ये मुझे किया हुआ है, 1 मिनट अभी सॉल्व करने बैठूंगा तो सॉल्व हो जाएगा. एक क्वेश्चन है कि मैं पता नहीं है, अभी गेस कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे करूँगा. तो फर्स्ट इटरेशन में ऑलवेज स्किप दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और नॉट कंफर्टेबल. गो फॉर दोज क्वेश्चंस इन विच यू डेफिनेटली नो कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है. आई थिंक इट इज़ प्रिटी ईजी कि एक बंदा इधर से इधर गया, फिर 5 मीटर्स नॉर्थ गया, फिर 6 मीटर साउथ गया, अब वो किधर देख रहा है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है. बहुत सारे तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन, सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, इजी क्वेश्चन हटा लीजिए. आपके कंफर्ट फैक्टर, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड कर सकता है इजी क्या है आपके लिए, इट मे वेरी. बट ट्राई टू अगेन वही सेम लॉजिक लगता है PYQ वाला. 10 साल का CSAT का पेपर ले लीजिए, 5 साल का मोर रिलेवेंट रहेगा, और उसमें देख लीजिए कि आपका कंफर्ट फैक्टर क्या है. कौन से वो 20 क्वेश्चंस हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो आप बहुत आसानी से कर पाते हैं, तो सबसे पहले अपने पेपर में वो 20 क्वेश्चन उठा के कर लीजिए. अगर आपने 20 भी मैथ्स के पेपर कर लिए, 20 मैथ्स के क्वेश्चन, यू आर डन. 20 इंटू 2.5 आप पास हो गए हो. तो यू नीड नॉट अटेम्प्ट ऑल 50 क्वेश्चन. या आप आराम से आइडेंटिफाई द लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड ट्राई टू प्लग देम फर्स्ट. तो CSAT की आई थिंक द बाकी थ्रू रिसोर्सेज के लिए आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन, क्योंकि मैंने कभी फॉलो नहीं किया. तो आई थिंक ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने RBI के समय कुछ पढ़ा था तो कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे एप्टीट्यूड के लिए, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए. आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम्स अभी, तो वो अच्छे थे. बाकी आई थिंक यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं हर चीज़ के, टॉपिक वाइज, स्पीड एंड वर्क, डिस्टेंस, उसको. तो यूट्यूब वीडियोज़ आई थिंक विल सफाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और प्रैक्टिस के लिए. दैट इज़ अबाउट CSAT. एनीथिंग एल्स? हाँ यस, आस्क, डोंट हेजिटेट. हाँ. See, it's a good question because, as I said, planning is very important. The first stage of preparation is not jumping into studies directly without knowing what your resources are, without knowing your timelines. First thing is identify your resources. Second thing is, as you rightly said, make a timetable. You may not stick to it 100%. Maybe you will be able to follow it only to 60-70%.
but sticking to a timetable and sticking to resources is very important. Then about basic time scheduling and structuring, I think like we are at June 2025. Next I think exam is on May 25th or something. So like we have around 11 months. So see, first attempters 4 months, like January onwards, I would say January, February, March, April, May, 4 to 5 months should be dedicatedly devoted to prelims only. So Jan onwards, you should switch your preparation to prelims only mode. Till then, like from June to January, it is around 6 to 7 months of time. Time is there. In that, I would say ki, see, optional, if you are doing it from scratch, any optional would take around 3 to 4 months. So first 3 to 4 months devoted to your optional fully. Be thorough with your optional. Do it. Be previous year questions. It can be self-study or it can be coaching, whatever. But first 3 to 4 months dedicated to your optional. Be thorough with it. And then keep on revising simultaneously. Revision should not be just for the last stages of preparation. You should be doing it simultaneously. हाँ ठीक है, शुरू के एकदम पहली बार पढ़ने में रिवीजन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि मतलब अभी आज ही पढ़ा कुछ और फिर कल ही उसको रिवाइज कर लो. मे बी एकदम इनिशियल फेज में रिवीजन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ा तो उसको तो एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन जितना पास हो गई ना उतना रिटेंशन ज़्यादा होगा. जैसे बहुत टॉपर्स कहते हैं कि मैंने जो आज पढ़ा था वो कल पढ़ लिया था, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ लेता हूँ, फिर एक महीने में पढ़ लेता हूँ, तो 4 रिवीजन के साइकिल कर लेता हूँ तो बहुत याद हो जाता है. तो आई थिंक मैं इतना नहीं कर पाया था, पर आई थिंक अगर कोई कर लेता है तो इट वर्क्स वेरी वेल. तो दिस इज अबाउट रिवीजन स्ट्रक्चरिंग. एज आई सेड, जनवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स प्रिपरेशन. उसके पहले आप 3-4 महीना बी थरो विद योर ऑप्शनल, एंड रेस्ट जो 3 महीने बच रहे हैं उसमें यू कैन डू सी एनी ऑप्शनल कवर्स वन और द अदर जीएस. कि सोशियोलॉजी होगा तो वो GS1 कवर करेगा, PSIR होगा तो वो GS2 कवर करेगा. मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस डू कवर वन ऑफ द 4 GS. तो जो आपके 3 महीने बच रहे हैं उसमें आप अराउंड एक महीना मोटा मोटा यू कैन डिवाइड इट अमंग द रिमेनिंग 3 GS सब्जेक्ट्स. और फिर अगेन प्रीलिम्स में मोर और लेस यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग्स. लाइक GS1 अगर आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो वही स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, वही ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो while doing your prelims preparation you will be again going through the same resources, so you will become more thorough in your preparation. So that is the basic scheduling I would suggest. And like we had our previous year students, my lollies, they have attempted a prelims, so they have some shortcomings, and I would like to ask, how did you overcome that? So for the first attempt, like you don't have experience in sitting in the exam and you had a quite experiences, so they said that whenever we see the question paper or the first question, it feels like hard, so they just forget everything, and they like there's a fear, like, so how to overcome that and how you manage all these burden in your head and still write your mains and papers. See, I think the question as regards fear is concerned कि ये क्वेश्चन देखा और ऐसा लगा कि I do not know this question. This is a very important skill to have कि you should have the knack of writing anything even if you don't know anything. In mains it becomes very important because at least 3 to 4 questions every year there will be questions which you don't have any clue about. You will not have any idea. इस साल भी पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ट्विस्टर्स था, some other 3 to 4 random questions which will be there no matter how well you have studied. They will be मतलब एकदम extreme bouncers. But what do? Can you leave it? No, you cannot afford to leave it. As I said, it is very important to complete the paper. It is a generalistic paper. Even if you write some gibberish, you will get at least 2 to 3 marks out of 15 marks. But if you leave it blank, you will get 0. So you cannot afford to leave 3 to 4 questions just because you did not studied it or you don't know it. So then how to develop the skill of writing anything even if you know nothing? I think this comes with practice. आपको काफ़ी टेक्स्ट सीरीज़ करनी पड़ेंगी, काफ़ी मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे. वो लिखेंगे तो क्या होता है, आप मेंस के समय ना इतना सब कुछ तो पढ़ चुके होते हो कि अगर वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं भी आती है तो उसके अगल बगल टेंजेंशियल चीज़ें आती हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत करके एक नैक बना के भले ही आपको लगे, डोंट एवर सेल्फ डाउट कि यार व्हाट एम आई राइटिंग, दिस इज नॉनसेंस. डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस, जस्ट राइट, जस्ट फिल इन द पेपर. जैसे कि 10th का वो नहीं होता था कि 3 शीट मिली है भरनी है मुझे, यह आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो भर दीजिए अगर कुछ नहीं आता है तो. एंड डोंट बी जजमेंटल, एवरीबडी राइट्स द सेम वे, नोबडी इज
मतलब कमिंग विद ऑल द नॉलेज एंड नोबडी इज ओमनीसाइंट और ओमनीपोटेंट की सब आता है, सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट डेवलप द नैक ऑफ राइटिंग एनीथिंग, ऐसा है. बी कॉन्फिडेंट. Mindset matters, I think, a lot in this exam. In all the stages, in prelims, in mains, the mindset, if you are positive, if your attitude is that I can do it, it manifests in the exam, even while writing the exam. If you think that your preparation is good and you will be able to clear it, at least it will make a difference of 5 marks per paper. I am telling you this from my personal experience. There are people who self doubt themselves and they end up harming themselves because the quality of their answers, the quality of their essay, the quality of their argumentation will go substantially down in the paper. Whereas a positive person who thinks कि अरे नहीं मैं अच्छा लिख रहा हूँ, भले ही वो कुछ भी लिख रहा हो, बेकार लिख रहा हो, पर उसको लग रहा है कि वो अच्छा लिख रहा है, it will help him to increase his marks. और कुछ Sir, I have a problem with sleeping issues on my class. problem with? Okay. Okay. Sir, because when I study, I get so much stress that I feel like I can't pretty much I won't be able to complete this with how much how should I? So yes. ये इसको सोल्यूशन नहीं है मेरे पास. सोना है तो पढ़ना छोड़ दो. इतना पढ़ से ना आए तो you have to manage. See, nobody requires you to compromise on your sleep. आप फुल टाइम प्रिपरेशन में हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप आराम से 7-8 घंटा सो सकते हो. और एक अडल्ट लाइफ हुड में आई थिंक 7-8 घंटा सोना है तो इज़ मोर देन इनफ. अब अगर उससे ज़्यादा सो रहे हैं तब हाँ डेफिनेटली थोड़ा चैलेंज है. Sir, sure. My sleep time is very Hmm. unforced. तो वाई इज इट सो? यू आर नॉट एबल टू स्लीप और यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू नॉट स्लीप? I don't know. It's both because of Schedule your studies in a way that the sleep should not get compromised. A good, healthy sleep is necessary. Otherwise, it is not sustainable. See, the exam is not like a 10th or 12th board exams. कि दो हफ्ता नहीं सोए, 2 बजे उठ के पढ़ लिया, हो गया. एग्जाम रिक्वायर्स अ मैराथन लाइक अप्रोच. 1-2 साल पढ़ना है, तो वो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करके तो नहीं होगा. Without study, without hard working, they won't success. If you have any solution, please give the No solution for that. such kinds of expectation. You have any? Yeah. Sir, Yeah, you can ask. so being from an RBI background, and I guess like you had a good economy perspective, but you said that you got like your GST paper was not good, in not scored bad. So I also heard from many people, from my colleagues, that they are not getting economy concept cleared. So what is the approach for? I think, see, the correlation of my knowledge with my GS3 marks is not a very correct correlation. Again, mains में जैसा I told you ना कि I was not thorough with my facts, with data. So that is where I was lacking in GS3. अब how to, as regards the second part कि economics में conceptual clarity कैसे लाए, तो I think, see, in economy I relied on my coaching notes. That was a good because I come from a non-humanities background, engineering background, तो economics का कोई background नहीं था, तो coaching was a good start for me, my initial GS coaching. Then I think आज की in today's date you have lot of online resources where you can get your doubts cleared. YouTube पे वीडियो भी देख सकते हैं. फिर एक विवेक सिंह का चैनल है टेलीग्राम पे, वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन डालते हैं इकोनॉमिक्स के मेजर इवेंट्स या मेजर न्यूज़ का, विवेक सिंह. फिर मृणाल की भी बुक अच्छी है, वो भी काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में उनके नोट्स है. तो आई थिंक ये 2-3 रिसोर्सेज काफ़ी होंगे आपको अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम की, तो इन्वेस्टोपीडिया है एक अलग रिसोर्स है जो कि थोड़ा और इकोनॉमिक्स फोकस्ड है. पर आई डोंट थिंक सो कि द यूपीएससी रिक्वायर्स इन्वेस्टोपीडिया लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में. आई थिंक मृणाल, विवेक सिंह, दीज रिसोर्सेज विल सफाइस. डेफिनेटली होगा. देखो, जो टारगेटिंग का मेन पर्पस, जैसे मैंने बोला कि कभी भी 100% तो कोई भी थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टारगेट को स्टिक करना.
अगर if one is able to achieve 80% of his target also, it is good enough. As regards आप लोग के पास जैसा टाइम है तो अपने शेड्यूल में 1-2 बफर डेज डाल लीजिए, वीकली टारगेट्स बना लीजिए कि डेली टारगेट्स मिस हो रहे हैं तो उन बफर डेज पे ट्राई टू ओवरकम. डोंट अपनी नेक्स्ट डे का टारगेट उसकी वजह से वो मत कीजिए, चेंज मत कीजिए, ऑल्टर मत कीजिए. स्टिक टू योर टारगेट्स. जो छूट गया है डेली टारगेट, ट्राई टू कवर इट ऑन सम बफर डे. या आपने वीक का टारगेट बनाया था तो 1-2 दिन रिवीजन के लिए रख लीजिए, या जो पिछला छूटा हुआ है उसके लिए रख लीजिए. ऐसे कवर अप कर सकते हैं मिसिंग टारगेट. बाकी डेली टारगेट मिस होगा, इसमें कोई मतलब सबके साथ होता है. इवन द बेस्ट ऑफ पीपल मिस देयर टारगेट्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव टारगेट्स ऑन अ डेली बेसिस. Having targets is important. That ensures that you are doing at least 80%. But that does not mean कि daily you will be able to do 100% of your targets. ओवरऑल सर ने आज पूरा 360 डिग्री अप्रोच बताया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इंक्लूडिंग रिसोर्सेज बताए, मिस एनालिटिकल अप्रोच बताया. और सबसे इम्पोर्टेंट, कल जब मिस एक डेडिकेशन डिवोशन होता है, कल सर का मैसेज मिस जो हमारे मिडल पर सर है उनको ऐसा है कि सर की तबीयत बहुत ख़राब थी कल और 102-103 फीवर था और शाम तक कंफर्म करेंगे कि एग्जैक्ट क्या है, हेल्थ का इशू रहेगा तो हम लोग फिर पोस्टपोन कर पाएंगे. तो हमने सर के ऊपर मिस थोड़ा छोड़ा कि सर अच्छा लगेगा तब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे. तो अभी शाम को सर ने और बताया कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी 90 है फीवर, तो हम लोग सुबह तक कम हो जाएगा तो हम रेडी होंगे. तो देखो मिस है ना, और आप लोगों के पास सो मेनी रीजन रहते हैं, उनके पास रीजन है ऑलरेडी. आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना क्या होता है, आरबीआई मैनेजर बनना क्या होता है, आपको अच्छे से होता है. उसके लिए भी एग्जाम, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और पूरा हार्ड सिलेबस, जीके जीएस सब कुछ करने के बाद वो ऑफिसर बनना. उसके बाद पढ़ाई करके फिर आईएएस बनना, और सिर्फ आईएएस में बनना, वो ऑल ओवर इंडिया रैंक 70 में आना. उसके बाद भी और 70 के साथ साथ सिर्फ आईएएस का नहीं सपना देखना, आईएफएस देखना. उसके लिए इंटरव्यू में उतना मिस वो पोटेंशियल मेंटेन करना. ये सब कुछ चीज़ें ना वो क्या होती है ना, एक विल पावर से होती है, एक डेडिकेशन डिवोशन से होती है. और वो कल उनका एग्जाम्पल हो हमने खुद ने रियलाइज किया. तो आप लोगों के भी लिए एक एग्जाम्पल है. आप लोग है ना बहुत बार विजन देते हैं, सो मेनी टाइम्स आपके पास रीजन होते कि ये हो गया, मैं थोड़ा बीमार हूँ, सुबह उठने के लिए ये हो गया, बैठने के लिए कंफर्ट नहीं है, ये हो गया वो हो गया. उनके पास रीजन नहीं. अभी वहाँ यहाँ देखो एसी का इन्वायरमेंट नहीं था, कूल नहीं था, उनको क्या तकलीफ हो रही होगी वो उनको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कंसल्टेंसी मेंटेन की, वो मिस कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखा. 1 घंटे का हमने एक्सपेक्ट किया था सर आएंगे 30 मिनट्स लेंगे मिनिमम, लेकिन अभी 1.5 आवर हो गए, वो कंटिन्यू ले रहे हैं स्टैंडिंग रह के. ये बहुत बहुत बड़ा मिस हमारे लिए भी एक लर्निंग होता है, हमारे लिए भी एक इंस्पायरेशन होता है कि वाई दे आर आईएएस, वाई दे आर सिलेक्टेड बाय यूपीएससी. तो ये जो रीज़न का आंसर हमें मिल जाता है तो उस हिसाब से हम भी हमारा 100% देने के लिए ट्राई करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स में भी उतना 100% देना चाहिए. हम आप स्टूडेंट लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी आपका जो पहला जो बिहेवियर है, पहला जो नौटंकी, जैसे कि मुझे नींद ज़्यादा आती है तो मैं क्या करूँ, वो नौटंकी घर रखो. नया संबंध में वो तुम्हारे जो चिल्लर जो क्वेश्चन है ना वो घर रखो. आप लोगों को यहाँ आप यूपीसी कर रहे हैं, माइंड सेट है, पैरेंट हो के आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं होती है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके आपको यहाँ तक ला रहे हैं, तो आपको वो मेंटेन करना है खुद को. वो डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, वो कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा. ये सब कुछ ओवरऑल सर को दिल से थैंक यू, उन्होंने टाइम निकाला और टाइम दिया. थैंक यू सो मच सर जी. ऐसे ठीक है, थैंक यू एवरीबडी, ऑल द बेस्ट. केस पढ़ाई करो. देखो हर एक सेक्शन जितने भी अभी लास्ट तक 5 to 7 सेक्शन था, ये बराबर 7 सेक्शन था. जितने भी सेक्शन हुए उसमें वैल्यू एडेड मिला, कंटेंट मिला, क्वालिटी मिला. ये सिर्फ एक देखो आइडिया, गाइडेंस वाले सब कुछ नंबर ऑफ अवेलेबल है, लेकिन एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. मैं हर सेक्शन के लास्ट में एक वर्ड बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन. यहाँ से एक लाइन भी सर का आपको आपने पिक किया होगा, वो लाइन आप एग्जीक्यूट करेंगे ना तो भी आपकी इतनी टिकट आपकी बिल और सिंप्लीफाइड हो जाएगी. आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 कम बढ़ जाएंगे. एग्जीक्यूशन, एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, ये वर्ड आपके प्रिपरेशन के सबसे कोर और प्रीसियस वर्ड चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए. जो इनसाइट सब ने दिया, जो बैकग्राउंड सब ने बताया, अच्छा सा बताया. नोट्स मेकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि नोट्स मेकिंग में क्या होगा, मिस वो एम लक्ष्मीकांत को भी संपादित करना चाहता है और उसको और बारी बारी से लिखना चाहता है
की पॉइंट नोट सीखना चाहता है तो रनिंग नोट सीखना चाहता है, जरूरत ही नहीं है। और ये बहुत बार बताते हैं। और एक सबने और एक सिंटेक्स बहुत अच्छा यूज किया था कि स्टूडेंट हमेशा ना हर बार वो जो बुक्स होता है वो बुक्स बार बार चेंज करना चाहता है। ये बुक्स हो गए, फिर दूसरा कोई मार्केट में आया वो बुक्स हो गया। ये बहुत कम IAS ऑफिसर या तो बहुत कम सिलेक्टेड स्टूडेंट बोलते हैं कि बुक्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि बुक्स ये सबसे कोर होता है। क्योंकि आपके प्रिपरेशन का कोर्स सोर्सेज मैटर करते हैं। सोर्सेज बार बार चेंज करेंगे तो आप रिकॉल कैसे कर पाएंगे और वो इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, तो ये मैटर करता है। ये जो वर्ड्स आपने लिखे होंगे इस सब ने क्या करो, जो भी ओवरऑल कंटेंट सर ने पढ़ा है उसके ऊपर कम से कम 20 की पॉइंट्स लिखो और वो एग्जीक्यूट करने के लिए आज आपको खुद को एक मैं बोलो ना, एक रिजोल्यूशन करो कि मुझे ये इंप्लीमेंट करना है, 20 की पॉइंट्स। और हर सेक्शन हो रहा है, हर सेक्शन से कुछ ना कुछ 20 पॉइंट नहीं लिखेंगे और आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं है। आके मतलब नहीं है, बैठ के मतलब नहीं। वो सिर्फ शो ऑफ करना है तो करो ही मत, करना है तो इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। मुझे कल आपके सबके जितने भी इंडिविजुअल ग्रुप बनाए, रिलायबल के पर्सनली ग्रुप बनाए आपके, बराबर पेरेंट कप के, सबके 20 पॉइंट्स आज के पूरे सेक्शन के चाहिए इम्प्लीमेंट के सारे। चलेगा? नहीं रहेगा तो ग्रुप लेट कर देंगे आपका। डन? चलो बाय, ऑल द बेस्ट।